Okay. Who wants to go for the yesterday's class? Anyone? Sir, I will go for it. Okay, Swati. Let's proceed. Yeah. So last class we talked about application gateway, which is an enhancement of a load balancer. It also includes autoscaling. Autoscaling refers to adjusting the resources which were allocated based on the actual demand. We then saw two types of scaling. One was horizontal scaling, which refers to adding or removing virtual machines, containers, or servers as per the requirement or as per the traffic. Then we saw about vertical scaling. It refers to increasing or decreasing CPU, memory, or storage resources. Application gateway also included WAF, which meant Web Application Firewall. It provides an additional layer of security to protect the web applications from attacks. Then we saw the types of application gateway, which were of four types: standard V2, WAF, and WAF V2. Standard just included the load balancer. Standard V2 included the load balancer plus the auto scaling part. WAF included load balancer plus firewall, whereas WAF V2 included the load balancer, auto scaling, and WAF. Then we talked about the features of application gateway. First one was cookie-based affinity, which ensures that a client's subsequent requests are routed to the same backend server that served the initial request. Second was the connection draining, which ensures that the ongoing transactions or requests are not abruptly terminated and handles it. Third one was the multi-site hosting. Hosting multiple websites or web applications on the same application gateway instance was allowed. Then we saw SSL offloading. The gateway handles the encryption and decryption for the incoming HTTPS request on behalf of the backend servers. We also saw HTTP to HTTPS redirection, which is a security practice ensuring that all the traffic is encrypted using the HTTPS protocol. We next saw how to create an application gateway. After looking into it, we learned about the Azure Active Directory, which is an identity and access management service. The fundamental component, which includes the database, which stores the information about users, groups, applications, and devices. The requirement was setting up the username and password in each of the virtual machine, because an organization can have multiple virtual machines, so setting up those in each machine individually was not feasible. So we make a central server, and authentication of all virtual machines is done via this central server. So if we want to configure a central server, we need to make it into an Active Directory. We need to make it a domain controller. For that, we need to install AADS into the Windows virtual machine. The requirement was it should be an server-based operating system. Then we saw how to create an Azure-based Active Directory. That's it. Thank you, Swati. Thank you for the good summarization. I hope that you have made the notes of it as well. Right, Swati? Yes, sir. Okay, perfect then. So basically, it's a very good way to just learn the new technologies. If suppose you go on making the notes with the ongoing classes, because these things you may forget all these things after few days. So it's a very good practice to just keep a note. So for example, even after 6 months, if suppose you try to open this Azure portal, then you will be having all the clear idea that what these resource groups, what this virtual networks, what these application gateways mean about. Okay. So just talking on the later half of the yesterday's class, where we configured the Azure directories and all, Active Directory basically. So it was mostly the work of the system admins. But apart from it, the ADDS, we have another concept that is known as ADFS. Let's see what it is. Just a brief introduction about it.
This is also available. ADFS, it stands for Active Directory Federation Service. So it is also an same kind of feature, but it's developed by Microsoft that provides safe and authenticated process to any domain, device, web application, or system within the organization's Active Directory, as well as approved third-party systems. So this is also there, ADFS, apart from ADDS, I guess yesterday we learned about. So this is also used in some of the organizations. Even one of the organization that I worked with, the ADFS was used. Once I talked to the system admins, they use the ADFS on the backend. But we always have an option with ADDS, and the other option becomes the ADFS. There is some advantages over the of the ADFS over the ADDS. Reduction in IT support, simplified deactivation, organizational efficiency, and improved security. So these setup and everything requires some on-premises setups as well. If suppose you search for ADFS setup, ADFS setup, step by step. So this requires a lot of cloud infrastructure. See, this is again the same one as the ADDS, but with some enhanced feature. And if suppose you take a look of this infrastructure of this ADFS server diagram, ADFS. So it's a very complicated kind of and stuff that if suppose even you know the terminology, that's okay for the time being. So just go through some of the documentation of the ADFS as well. That what it's all about, and what companies do really use it, and what are the advantages of it. Okay, so yeah, coming back to our Azure. So we are almost done with almost all the services that are presently used in industry. There are several other services as well. We haven't seen the monitoring, but those things you can do it on your own. But from the Azure point of view, we will be wrapping it off from the Azure services that we were using for the past few days or weeks rather. So from tomorrow, we will be moving more forward towards the DevOps part, that how this Azure services can be used in our DevOps part. For example, what are the other tools that we combine and see and do our daily DevOps tasks. For example, CI/CD pipeline, what is Docker, what is Kubernetes. So these all things you will be getting to know, and that's an extra addition to this course for this year. So for today's class, we will be wrapping it off from the Azure services point of view. So let me write that what are the two things that we're going to finally. So we have talked about a lot of things till today. For example, from the deployment to management to migrations, everything. But we haven't done something called backup. Backup in the sense backup. Okay. In Azure, how do we do the backup? So one of the most probable services that we use is Azure Site Recovery. Okay, so what this Azure Site Recovery is all about? This is ASR, to be precise. The short form of this Azure Site Recovery is ASR.
So what this site recovery means and when do we use this site recovery, and what are the different aspects of this site recovery. So for example, let's suppose say you have data centers in US. Okay, so you have your data centers configured over and you have some data over here and it's from central US. Okay, and you are in India, and this is a client server. You are in India. You are directly connecting to the US server for the data and it's giving back to our server. What happens if some natural disaster or some disaster happens on this particular web server? The disaster can be of any kind. Okay. For example, this whole data center, let's suppose say this is a data center. ठीक है, अगर इस पूरे data centers में this is a central US data center, what happens if suppose our data center, the central US data center, whatever in availability zone we have kept it, if suppose everything gets into a disaster. So disaster can be of many kind. It can be in natural disaster. For example, suppose वहाँ cyclone आ गया या क्या बोलते हैं उसे, some other जो भी अगर वहाँ पे जो waves आते हैं, तो अगर if suppose some natural disaster comes up over there in central US, or what if my power supply is cut off, power supply to my data center, अगर यही बंद हो गया या फिर साइक्लोन आ गया या फिर कुछ अगर अर्थक्वेक आ गया, हमारे पूरा डेटा सेंटर्स यहाँ पे जो भी थे ये पूरा मतलब कि it got impacted. ठीक है, तो अब this was the only data center that I had for one of my clients. तो अगर एक ही data center रहेगा तो फिर ये जो हमारा सर्वर को यहाँ पे सर्व कर रहा था तो फिर ये तो सर्व करना बंद कर देगा, क्योंकि ये तो बोलेगा कि I cannot fetch data from the server. So for example, if suppose you talk about Amazon, Flipkart, you will rarely see that their website goes down. You will rarely see that their website goes down. Even a 1 minute, even a 1 minute downtime to the leading e-commerce platform बोल लो, banking sectors बोल लो, healthcare sectors बोल लो, अगर even 1 minute का भी downtime आता है ना to their server, you can see that they get the losses in some millions or billions. ठीक है, actually these Amazon, Flipkart, या फिर you talk about the healthcare industry, you can talk about the banking industry, that even if there is a 1 minute downtime, अगर 1 मिनट के लिए भी सर्वर बंद हो जाए ना, so they will be facing a huge loss. ठीक है, तो इस huge loss से बचने के लिए what are the probable solution? हमारे पास probable solution क्या है? ठीक है, probable solution क्या है? ठीक है, the probable solution is that अगर मेरा डेटा सेंटर सेंट्रल यूएस के किसी अवेलेबिलिटी जोन पे है तो हम एक और काम कर सकते हैं कि हम द सेम डेटा सेंटर आई विल बी प्लेसिंग इट ऑफ समवेयर इन यूएस, ये कर सकते हैं। या फिर हम ये एक डेटा सेंटर हो सकता है ये सेंट्रल यूएस में है, हम कहीं पे एशिया में सेंट्रल इंडिया पे ही हम कहीं डेटा सेंटर रख दें। दिस इज फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। There is a possibility if suppose at any point of a time, if suppose I don't get the data from my main server, then I can directly switch back to my backup servers or the backup data centers that I want data from you. This isn't going to give me the data because of the failure or the disaster, so I will be heading back to my secondary servers. These are my primary data centers and these are my secondary. For example, I can switch back to any one of those. I will be switching back to central India, or I will be switching back to anywhere else. For example, it's in UAE. अगर UAE में है, अगर मेरा data center यहाँ भी है, then I can directly switch back to this particular data centers as well, जो हमारा active state में हो. So to avoid this downtime, we set up a particular thing called Azure Site Recovery, which helps us indeed to avoid this downtime onto our server and provides a proper backup for all our servers in terms of data.
If suppose some natural disaster happens to our main server or to the primary data center, we still have some backups, and from where we can restore all our things that were already present over there. Okay, so this is a brief introduction about the Azure Site Recovery. I will let you more about it now. ठीक है, अच्छा अब एक just now जैसे फॉर एग्जांपल ना एवरी स्टेट और रादर एवरी कंट्री हैज इट्स ओन डेटा पॉलिसी और कंप्लाइंस बोल सकते हो कि दैट एवरी कंट्री हैज इट्स सारे कंट्री के सभी गवर्नमेंट कुछ कंप्लाइंस फॉलो करने बोलते हैं टू ऑल दी लीडिंग वेब प्रोवाइडर्स बोल सकते हो, जो भी हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को ना, हाँ, उन्हें एक कंप्लाइंस फॉलो करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल एक बेसिक्स एग्जांपल लेते हैं. In India, what this Indian government recently, the government of India recently passed a law that whatever data you have for our people, मतलब इंडिया के लोगों के जो भी डेटा है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के डेटा हो गया, फेसबुक के डेटा हो गया, you won't be moving it out of India. You won't be moving it out of India. मीन्स हमारे जो इंडिया के डेटा होंगे ना, हमारे इंडियन डेटा सेंटर्स में ही होंगे. Let it be anywhere. Let it be anywhere. Let it be in Delhi. Let it be in Bangalore. Or let it be in Chennai. और हैदराबाद. ठीक है, जहां भी हमारे डेटा सेंटर्स होंगे, you cannot move the data out of these particular region. ठीक है, so this was a compliance that was applied to all the leading web cloud service providers, for example Microsoft, Google and Meta as well, I guess, कि जिनके पास जो भी डेटा है ना, they won't be moving because the government of India fears that if suppose my Indian their people's data, if suppose gets leaked outside, they can't do anything. But if suppose it gets stolen from these data centers, they still have the access that okay, from which data center it really got hacked, or what was the cyber attack. They will be having the access. If suppose the central US government denies us the access of whatever data, of some data breach over there on the US data centers, they won't be having the access. So basically what these big companies, the big tech giants, what they do really in India, that they keep the data centers here in India itself, but that can be located somewhere in Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad, or whatever else location that they have. Okay, so this is all about your disaster backups and everything. So we'll be now heading more towards the Azure Site Recovery. ये कहता क्या है exactly? Okay, let me delete this up. So for an Azure Site Recovery, we have to create a disaster recovery setup. ठीक है, डिजास्टर रिकवरी, हमें एक पर्टिकुलर बैकअप लेने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ डिजास्टर रिकवरी सेटअप. डिजास्टर रिकवरी, इसे हम लोग बोलते हैं डीआर. ठीक है, ये हमें डीआर सेटअप करना पड़ेगा फॉर अ पर्टिकुलर डेटा सेंटर. अगर हमें उसे डेटा सेंटर या फिर सर्वर बोल लो, अगर हमें उसे बैकअप रेडी करना है ना, तो उसके लिए हमें डिजास्टर रिकवरी करना पड़ेगा. ये डिजास्टर रिकवरी हम कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ. लेट्स गो हियर. या ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज से वी हैव सम सर्वर्स ओवर हियर. ठीक है, ये हमारा रिसोर्स ग्रुप है. This is one of our resource group. This is the virtual network. ठीक है,
इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हमारे बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन्स हैं कि दीज आर हाईली अवेलेबल जोन्स दैट आर प्रेजेंट इन योर रिसोर्स ग्रुप। अब उसके अंदर पे दैट यू हैव सम वर्चुअल मशीन्स और यू हैव सम डेटा सेंटर्स। ओके, ठीक है। सो यू हैव समथिंग ओवर हियर, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमें इस पूरे सेटअप का अगर मेरे को बैकअप बनाना है, इसे हमें बैकअप बनाना है, देन वी विल बी क्रिएटिंग समथिंग कॉल्ड just so this is just the IP of the load balancer or the application gateway जो हम इसे हिट करेंगे तो हमें इस सर्वर पे लेके जाएगा, ठीक है। एंड वी विल बी क्रिएटिंग रिकवरी सर्विस वॉल्ट। तुम लोग देखे होगे, तुम लोग ने कुछ रिसोर्स ग्रुप डिलीट नहीं कर पा रहे होगे बिकॉज इट हैड सम रिकवरी वॉल्ट ऑटो क्रिएटेड, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं रिकवरी सर्विस वॉल्ट, ठीक है। इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट में क्या होता है, इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट में हम लोग इनेबल करते हैं साइट रिकवरी को। वी इनेबल साइट रिकवरी and we mention that how do you want to replicate this particular server। इस सर्वर को रेप्लिकेट कैसा करना चाहते हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेप्लिकेशन टाइप, और यू कैन जस्ट सिंपली राइट रेप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब हमने हमारे इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट से और इस साइट रिकवरी और रेप्लिकेशन टाइप से ये एक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस सेटअप हमारे यहाँ इस साइड पे वो सेटअप कर देगा। तो मैं बताता हूँ सेटअप कैसे करेगा, ठीक है। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, द ओनली डिफरेंस इज दैट ठीक है, वट एवर थिंग्स आर ओवर देयर, ये भी यहाँ पे सब कुछ वही सेटअप करेगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट ना कि ये अगर यहाँ पे जो भी एक वर्चुअल मशीन है या फिर जो भी काइंड ऑफ एन सर्वर है ना, उसका बस एक यहाँ पे एक मैनेज डिस्क बनाएगा। ये यहाँ पे दिस विल बी अ मैनेज डिस्क, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि एक मैनेज डिस्क से वीएम कैसे बनता है, यू ऑल नो दैट इफ सपोज यू हैव अ स्नैपशॉट, पहले स्नैपशॉट का वो मैनेज डिस्क बनाते हो, डिस्क से तुम लोग वीएम बनाते हो। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक मैनेज डिस्क बना हुआ है, तो ये यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ वीएम, या फिर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा विद जस्ट अ बटन क्लिक। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग, ठीक है। तो ये होगा क्या, तो ये जो साइट रिकवरी हम लोग जब इनेबल कर देंगे, ये जो साइट रिकवरी हम लोग इनेबल कर देंगे, तो ये हमारे मेन सर्वर पे एक कैश स्टोरेज करके बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। दैट इज नोन एज, ये यहाँ पे लेट दिस नेम एज, सो दिस इज बेसिकली कैश स्टोरेज। कैश मेमोरी सब समझते हो एवरीवन, कैश समझते हो, कैश, Yes, sir. ठीक है। तुम लोग देखोगे फॉर एग्जाम्पल सपोज द हाई एंड एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल द हाई एंड मोबाइल एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड वेरियस अदर स्टफ। तुम देखोगे कि ना कि काफी मेमोरी वो ना, अगर मान लो तुम्हारा ये फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑन अ लो नेटवर्क रीजन, ठीक है, वो फिर भी ना प्रीवियस सेशन से बहुत कुछ वो कैश करके रख सकता है, ठीक है। जब भी तुम लोग व्हाट्सएप का जब डीपी किसी के डीपी तुम लोग खोलते होगे, तो फर्स्ट वो तो कुछ तो दिखता है ब्लर करके, फिर वो पूरा फाइनलाइज डीपी दिखता है, ठीक है। तो जब तुम लोग इनिशियली जब तुम लोग ने कभी अपना एप्लीकेशन खोला होगा, तो किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे जब तुम्हारा डीपी दिखता है, फॉर एग्जांपल ऑन दी स्मॉलर वर्जन, मतलब कि जब तुम लोग टैप नहीं करते हो फुलर वर्जन पे, तभी तुम्हें तो डीपी तो दिखता है कि हाँ ये फोटो दिख रहा है, बट क्लिकिंग ऑन दैट डीपी वो तुम्हें बड़ा फोटो खुलता है, it blurs a bit and then after some time then it actually loads the data from the server कि हाँ ये देखो ये एक्चुअल फोटो है।
हम तो अभी तुम्हें छोटा फोटो दिखा रहे थे, बट टैपिंग ऑन इट वो तुम्हें पूरा बड़ा फोटो दिखाता है, बट दैट इज इनिशियली इन ब्लर्ड स्टेज। ठीक है, तो ये करता कैसे है, दीज आर बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कैश मेमोरी। सो ये जो होता है ना, कुछ मेमोरी अपने पास कैश इन करके रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो तुम लोग लो डेटा नेटवर्क पे चले गए, या फिर फॉर सम रीजन हमारे सर्वर में कुछ अगर दिक्कत आ गया, आई स्टिल हैव समथिंग टू शो फॉर यू। देखो, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। ठीक है, अगर मान लो इंस्टाग्राम का वेबसाइट डाउन है और अगर वो मेरे को फीड पे कुछ दिखाए ही ना, कितना गंदा लगेगा। बट इफ सपोज अगर उसने लास्ट सेशन से कुछ कैश करके रख लिया हुआ, कुछ पोस्ट को, कुछ रील्स को, जस्ट अ सेकंड, उसने अगर मान लो लास्ट सेशन से कुछ अपने पास वहां पे कैश इन करके रख लिया होगा, तो वो कैश करके रखने से क्या होगा, नेक्स्ट सेशन पे भले ही हमारा सर्वर डाउन है, भले ही हम लोड नेटवर्क एरिया पे हो, वो स्टिल एक दो फोटो, चार फोटो तो हमें दिखा के ही जाएगा कि भाई आई कुडंट लोड योर फीड मोर। ठीक है, सो ये जो भी हाई एंड एप्लीकेशन होते हैं, हाई एंड मोबाइल एप्लीकेशन बोल लो या फिर वेब एप्लीकेशन बोल लो, जहाँ पे कैशिंग इनेबल रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेना। ये बहुत ही स्मॉलर चंक में होता है, व्हाट इज कैश मेमोरी। ठीक है, ये हमारे रैम में भी होता है। कैश मेमोरी इज अ चिप बेस्ड कंप्यूटर कंपोनेंट दैट मेक्स रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी मोर एफिशिएंट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हाईली एक्सेसिबल होता है एंड इजिली एक्सेसिबल एज वेल। ठीक है, इसे बोलते हैं कैश मेमोरी। ये अगर तुम सीपीयू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो as a buffer between RAM and CPU, fast memory type that acts and as a buffer between RAM and CPU। ठीक है, ये आर्किटेक्चरल लेवल पे है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द एप्लीकेशन लेवल कि ये कैश का मतलब होता है क्या। तो जब भी हम लोग ये साइट रिकवरी सर्विस वॉल्ट में हम लोग साइट रिकवरी इनेबल कर देते हैं, तो यहाँ पे एक कैश मेमोरी बन जाता है। ठीक है, कैश मेमोरी बनने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ के जो भी ओरिजिनल डेटा है ना, वो यहाँ पे कैश इन होते जाते हैं बेस्ड ऑन द रेप्लिकेशन। कब कब यहाँ कॉपी होना है, कैसे कॉपी होना है, वो डिपेंड करता है वेरियस अदर रूल्स पे। but the overall idea is that there is something called cache storage that is present inside our main server। वो हमेशा वहां पे वो कैश करते रहता है और ये सिंक रहता है हमारे इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट के साथ। ठीक है, ये कैश मेमोरी हमेशा सिंक में रहता है। ठीक है, अब अगर मान लो कभी किसी दिन अगर मान लो साइट फेल कर गया, हमारा ये जो डेटा सेंटर्स है, इफ सपोज इट गेट्स फेल्ड ऑन सम डेज, अगर ये किसी दिन अगर ये फेल कर गया, देन व्हाट वी कैन डू, हमारे पास यहाँ पे साइट रिकवरी इनेबल्ड है, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फेल ओवर का। ठीक है, आई विल जस्ट टैप ऑन दैट बटन कि हमारा फेल ओवर हो गया है। ठीक है, ये जैसे ही फेल ओवर हो जाएगा, ये फेल ओवर होने पे ये पूरा प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, ये पूरा एक नया रिसोर्स ग्रुप बन के, नया वर्चुअल नेटवर्क बन के, नया एक अवेलेबिलिटी जोन बन के एक मैनेज डिस्क बन जाता है। अब इस डिस्क से वीएम कैसे बनाते हैं ये सबको पता है, या फिर ये ऑटोमेटिकली भी बन जाता है विद जस्ट अ बटन क्लिक। ठीक है, ये फेल ओवर पे क्लिक करने के बाद हमें ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एवरीवन क्लियर? क्लियर एवरीवन? अगर हम Yes, एक कुछ भी सर्वर वर्वर बनाए, ठीक है, सर्वर बनाने के बाद हमें बस एक रिकवरी सर्विस वॉल्ट बनाना है, उसमें साइट रिकवरी इनेबल करने के बाद ये रेप्लिकेशन वहां बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ रेप्लिकेशन डू यू वांट। ठीक है, ये बनने के बाद, ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट बनने के बाद, अगर Sitagar connect ହେଇଥିଲା हु इज दैट, ମୋର ତ connect ହେଇଥିଲା Motorola ଦେଖିଥାନ୍ତା। ଏଇ ପାଖ चलो, वो कुछ मोटोरोला बोल रहा था ना, फोन वोन देख रहा है कुछ, लग रहा है कि नहीं? अरे मैं सही पकड़ा कि नहीं यार, ये तो बता दो यार। कनेक्शन का भी कुछ बोल रहा था। हाँ, क्या बोल रहा है आदर्श? कनेक्शन का भी कुछ बोल रहा था शायद। अच्छा, कनेक्शन का भी कुछ बोल रहा था। चलो ठीक है, अब बस हमें रिकवरी सर्विस वॉल्ट बनाना है, उसमें साइट रिकवरी इनेबल करके हमें इससे अटैच कर देना है कि भाई मेरे को इस सर्वर का पर्टिकुलरली मेरे को अपने पास रेप्लिकेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन द रेप्लिकेशन टाइप। मतलब रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, कॉपी। वो कॉपी किस फॉर्मेट में होना चाहिए, और वो जो भी कॉपी बनेगा, जब भी हमारा फेल ओवर होगा, तो हम उस फेल ओवर पे क्लिक होने पे हमारा ये पूरा प्रोसेस कॉपी होके हमारे पास नया रिसोर्स ग्रुप, नया वीनेट, नया अवेलेबिलिटी जोन बन के एक मैनेज डिस्क बन जाएगा।
ठीक है। ये देखो और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये इसका जो पूरा लैब करने में ना, इस पूरा कंप्लीट सेटअप ऑफ द लैब करने में तुम्हें अराउंड 2 से 3 घंटे या 4 घंटे भी लग सकते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू कि व्हाट आर द प्रोसेस अवेलेबल, कि ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्या होता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, व्हाट आर द रेप्लिकेशन टाइप, एंड हाउ डू वी जनरली क्रिएट दिस मैनेज्ड। मैनेज्ड बनता के फेलोवर का ये बटन आता कहाँ है, ठीक है। बट ये बहुत लंबा टाइम लेता है यार, बहुत ज्यादा, ठीक है। बट स्टिल हम लोग कुछ तो करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ देन यू कैन ट्राई इट इन योर लैब सेशंस फॉलोइंग सम डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। रिकवरी सर्विस वॉल्ट, रिकवरी सर्विस वॉल्ट, वॉल्ट सेटअप, ठीक है। यू कैन स्टिल गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, देखो बैकअप सेंटर है, वॉल्ट क्रिएट हुआ, so you can always go to the documentation and can still see that what are the things that we can do using the recovery services vault, कि ये सब बनता कैसे है। इसका रेप्लिकेशन टाइप क्या है वो मैं दो रेप्लिकेशन टाइप होता है वो बता देता हूँ। उससे पहले चलते हैं अपने सर्वर पे, एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। इस रिसोर्स ग्रुप का नाम रखते हैं प्राइमरी रिसोर्स ग्रुप, या फिर ये हमारा जो है ना प्राइमरी आरजी, ठीक है। इसे हम डालते हैं, लेट्स पुट इट इन, कहाँ रखा जाए यार, सेंट्रल यूएस तो ये देगा नहीं, क्योंकि चलो ईस्ट यूएस पे रखते हैं, ठीक है। ईस्ट यूएस में हमारा एक रिसोर्स ग्रुप बना हुआ है, क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट। इसे बनने दो, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं। अच्छा ये वर्चुअल मशीन है, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं, लेट इट इन प्राइमरी आरजी, और इसका नाम रखते हैं प्राइमरी वीनेट, प्राइमरी वीनेट, ठीक है। नेक्स्ट आईपी एड्रेस में एक हम इसे सबनेट भी दे देते हैं, प्राइमरी सबनेट करके, प्राइमरी सबनेट 10.0.1.0/24, click on add, next security, next tags, next review and create। चलिए इसे डिप्लॉय कर देते हैं। उसके बाद हम ना एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, इस प्राइमरी रीजन पे। हमारा प्राइमरी रीजन क्या है अभी एवरीवन, ईस्ट यूएस, ठीक है। दैट वी हैव सेलेक्टेड दैट, ये मेरा प्राइमरी लोकेशन है, ठीक है। इस रिसोर्स का नाम रखेंगे प्राइमरी आरजी, वर्चुअल मशीन का नाम रखेंगे प्राइमरी वीएम, प्राइमरी वीएम। ईस्ट यूएस सही है, उबंटू ठीक है, सही है, ये भी सही है। इट डजेंट मैटर, हमें कनेक्ट तो करना नहीं है, बट तुम्हें बताने के लिए पासवर्ड @123, पासवर्ड @123, सब कुछ अलाउ कर देते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑन डेस्क नेटवर्किंग, ये प्राइमरी सबनेट में ले लेगा, एक आईपी बना देगा। चलो नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस्ड, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। चलो क्रिएट करते हैं एंड वेट फॉर द डिप्लॉयमेंट।
चलो, तो हमारा आर्किटेक्चर के हिसाब से हमारा एक प्राइमरी रिसोर्स ग्रुप है, उसमें एक प्राइमरी वीनेट है और उसमें एक प्राइमरी सबनेट के अंदर हमारा एक प्राइमरी वर्चुअल मशीन है। ठीक है, अब हमें सर्विस क्या बोलते हैं उसे, रिकवरी सर्विस वॉल्ट सेटअप करना है। ठीक है, रिकवरी सर्विस वॉल्ट सेटअप करने के लिए यू कैन डायरेक्टली गो टू रिसोर्सेस और सर्विसेज और तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट्स, यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। अभी यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, तुम यहाँ पे क्रिएट करो एक। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप देखो, a resource will be a collection of resources that share the same life cycle permission. ठीक है, एक काम करते हैं ना, एक सेकेंडरी रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं और उसे सेंट्रल इंडिया पे रखते हैं। ठीक है, क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप, इसका नाम रखते हैं सेकेंडरी आरजी। ठीक है, और इसे रखते हैं सेंट्रल इंडिया पे। कहाँ गया, ठीक है, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, लेट्स क्रिएट इट। ठीक है, अब चलते हैं रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट्स पे और क्रिएट करते हैं एक सर्विस वॉल्ट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एज वेल फर्स्ट सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन है। हम बोल रहे हैं मेरा जो रिसोर्स ग्रुप बनेगा ये सेकेंडरी रिसोर्स ग्रुप में बनेगा। ठीक है, वॉल्ट नेम रहेगा माई वॉल्ट। ठीक है, और रीजन देखो सेंट्रल इंडिया है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया क्यों ले रहा है, क्योंकि ये जो मेरा वॉल्ट नेम बन रहा है दैट इज माई वॉल्ट, और ये जो हम इसका बैकअप बना रहे हैं, बैकअप सेंट्रल इंडिया में बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइमरी आरजी कर देंगे तो क्या होगा देख लो। ठीक है, प्राइमरी आरजी कर देंगे तो ये ईस्ट यूएस पे ले जाएगा मेरे को वापस, लेकिन बट मेरे को हमें ये बनाना कहाँ है, हमें इसे सेंट्रल इंडिया में बनाना है। नेक्स्ट वॉल्ट प्रॉपर्टीज, इनेबल इम्यूटेबिलिटी नहीं चाहिए, नेक्स्ट नेटवर्किंग, ठीक है, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। चलो ठीक है, क्रिएट। क्या क्रिएट नहीं हो रहा है क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है, एक टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट हो रहा है फॉर, चलो ये सब टाइम लगता है पता है, ये रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट बनाने में, यही इसी में तो टाइम लगता है मेजरली। फिर भी वेट करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ईस्ट यूएस या फिर चलो इंडिया के बेसिस पे बात करते हैं, अगर इंडिया का कोई एक सर्वर है, अगर इंडिया का कोई एक डेटा सेंटर है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा डेटा सेंटर चेन्नई में है। ठीक है, एंड दैट इज योर मेन डेटा सेंटर, तुम्हारा सारा डेटा चेन्नई से आ रहा है। तो अगर तुम इसका रिसोर्स ग्रुप बनाना चाहते हो, अगर तुम इसके बैकअप्स बनाना चाहते हो, देन यू कैन डू इट इन द सेम रीजन इन सम अदर अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, हो सकता है ये चेन्नई का बैकअप तुम कहीं हैदराबाद पे बना दो, बट स्टिल द रीजन रिमेन सेम, दैट इज इंडिया। ठीक है, अब यही मान लो कि अगर मान लो किसी का यूएस सर्वर है, किसी का सेंट्रल यूएस पे सेंट्रल यूएस है, वहां पे इनके ये प्राइमरी डेटा सेंटर्स हैं, लेकिन ये इसका सॉरी सेंट्रल इंडिया नहीं यार, सेंट्रल यूएस। ठीक है, एंड आई एम क्रिएटिंग अ बैकअप ऑफ द सेंट्रल यूएस, हम इसे बना रहे हैं मान लो कहीं यूएई में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग आउट ऑफ रीजन हम लोग ये बैकअप क्रिएट कर रहे हैं, और ये हम लोग सेम रीजन पे कर रहे हैं, दिस वी आर डूइंग इन द सेम रीजन। तो अभी हम लोग कौन सा केस हैंडल कर रहे हैं, वी आर हैंडलिंग, हमने ईस्ट यूएस में प्राइमरी सर्वर है एंड वी आर क्रिएटिंग आवर बैकअप एट सेंट्रल इंडिया। चलो, जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे साइट रिकवरी। ठीक है, ये साइट रिकवरी है। ठीक है, यू कैन इनेबल साइट रिकवरी फ्रॉम हियर एज वेल। देखो साइट रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है, ये कैसे क्रिएट होता है, इससे पहले हम लोग चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन पे। तुम वहां देखोगे वर्चुअल मशीन पे भी कुछ साइट रिकवरी करके बना हुआ होगा। ठीक है, गो टू दी वर्चुअल मशीन। अगर तुम प्राइमरी वीएम पे जाओ, इसके ओवरव्यू पे देखो कहीं पे साइट रिकवरी लिखा है क्या? डीआर सेटअप लिखा हुआ है, डिजास्टर रिकवरी। So these are the operation that we can directly do on the virtual machines as well. ठीक है, यहाँ पे हमें डिजास्टर से रिकवरी सेटअप करना पड़ता है। दिस इज द बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, बट वी हैव क्रिएटेड आवर ओन सर्विस वॉल्ट। अब यहाँ पे जाने के बाद लेट्स गो टू बैकअप। ये बैकअप है, ये साइट रिकवरी है, एंड आई हैव बैकअप आइटम्स, बैकअप पॉलिसीज, साइट रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट आर द प्लान्स दैट वी आर गोइंग टू टेक। ठीक है, चलो क्रिएट करते हैं, एक बैकअप क्रिएट करते हैं। और तो हमारे पास कुछ है नहीं। हाँ, ये रहा, इनेबल साइट रिकवरी यहाँ पे दिख रहा है, तो विल क्लिक ऑन इनेबल साइट रिकवरी। चलो अब इधर देखो, मेरा रीजन ईस्ट यूएस है, अज्योर फॉर स्टूडेंट्स। रिसोर्स ग्रुप कौन सा रहेगा? मैं बोल रहा हूँ वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट मॉडल, प्राइमरी आरजी। ठीक है, ये देखो डिजास्टर रिकवरी बिटवीन अवेबिलिटी जोन्स, इसका मतलब हमने नो किया है, तो हम लोग सेम अवेबिलिटी जोन पे हम लोग डिजास्टर रिकवरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट अवेबिलिटी जोन पे कर रहे हैं। ठीक है, और प्राइमरी आरजी रहने देते हैं, रीजन ईस्ट यूएस रहने देते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। देखो ये प्राइमरी वीएम का करना है हमें, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, Azure साइट रिकवरी डज नॉट सपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रस्टेड वीएम्स। ठीक है, हमारा ये जो वर्चुअल मशीन था ना, ये हमारा ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन था, इसलिए ये इसका सपोर्ट ही नहीं करता है। ठीक है, सो यू हैव टू गो टू डॉक्यूमेंटेशन, और तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा वर्चुअल मशीन है ना, वो ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन है कि नहीं। ठीक है, ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन का ना, ये ना खुद बोलते हैं कि ये कभी भी फेल ही नहीं करेगा। ट्रस्टेड वीएम Azure। Benefits: securely protect keys, certificates, secrets in virtual machine, gain insights, ensure workloads are trusted, verifiable, securely deploy virtual machines with verified bootloaders, OS kernel। ठीक है, तो सिक्योर मशीन्स मतलब कि हमारे जो व्हाट डू यू से, जो ट्रस्टेड वीएम होता है ना, वो इनके लिए कभी बनाएगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इस प्राइमरी वीएम को यहाँ से डिलीट करते हैं, गो टू द प्राइमरी वीएम, और एक अनट्रस्टेड बनाते हैं। जब लैब करोगे ना, यू विल बी गेटिंग टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट यू हैव टू कवर अप। ठीक है, प्राइमरी पीएम 1 कर देते हैं, ईस्ट यूएस पे ही रहेगा, ये किसी पे नहीं रहेगा। ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन, ये स्टैंडर्ड कर देते हैं। पासवर्ड सिलिकन, ठीक है, गो टू डिस्क, प्राइमरी वीनेट, प्राइमरी सबनेट, सब कुछ ले लिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट मॉनिटरिंग, एडवांस्ड, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। चलो, उस वीएम को हमने डिलीट कर दिया क्योंकि वो एक ट्रस्टेड वीएम था। ठीक है, सोर्स पे चलते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है तुम्हारा सोर्स कहाँ है। ठीक है, सोर्स क्या है तुम्हारा? सोर्स मेरा ईस्ट यूएस है, रिसोर्स ग्रुप क्या है? प्राइमरी आरजी है। ठीक है,
नाउ वी गो टू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो वेट करते हैं उसके डिप्लॉयमेंट का। ये काफी टाइम लगाता है, काफी ज्यादा टाइम लगाता है, so you have to be well prepared for the lab sessions. चलो गो टू रिसोर्स, प्राइमरी वीएम बन के यहाँ पे रेडी है। चलो परफेक्ट, चलते हैं हम अपने, ठीक है। इससे अगर हम प्रीवियस करके नेक्स्ट पे आए तो शायद हमें दिख जाए। हाँ दिख गया यहाँ पे, एवरीवन प्राइमरी वीएम यहाँ पे आ गया, सेलेक्ट कर लेना है, गो टू नेक्स्ट, ठीक है। रेप्लिकेशन सेटिंग, ठीक है। लोकेशन एंड टारगेट लोकेशन क्या होना चाहिए, तुम किस लोकेशन पे इसे तुम सेट करना चाहते हो। ये भी वेस्ट यूएस पे है, इसे सेंट्रल इंडिया करके देखते हैं अगर होता है कि नहीं, ठीक है। जो नया टारगेट रिसोर्स ग्रुप बनेगा, जो मैं बोल रहा था कि ये सब कुछ एक कॉपी बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा, तो उसका नाम यहाँ बता रहा है कि ये नाम पे बन के आएगा। जो मेरा नया रिसोर्स ग्रुप बनेगा वो बनेगा प्राइमरी आरजी एएसआर। जो वीनेट बनेगा, फेल ओवर वर्चुअल नेट बनेगा, उसका नाम बनेगा प्राइमरी वीनेट एएसआर। जो सबनेट बन के आएगा दैट इज वुड बी प्राइमरी सबनेट, ठीक है। और ये सेम सब कुछ देखो, सब कुछ वही कॉपी होके आ रहा है, बट नाम चेंज हो जा रहा है। इसका नाम बनेगा प्राइमरी आरजी एएसआर, प्राइमरी वीनेट एएसआर। चलो ऐसे रहने देते हैं। और अच्छा, मैनेज रेप्लिकेशन सेटिंग है, इस पे हमारा स्टोरेज है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सब कुछ यही मैनेज करेगा। रिटेंशन पॉलिसी, 24 आवर रिटेंशन पॉलिसी, ठीक है, ये रहने देते हैं। ये पॉलिसी क्या कहता है, सेलेक्ट अ रिटेंशन पॉलिसी, रेप्लिकेशन पॉलिसी डिफाइंस द सेटिंग्स फॉर रिकवरी पॉइंट्स, रिटेंशन हिस्ट्री एंड ऐप कंसिस्टेंट स्नैपशॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बारे में भी बताते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन इनेबल रेप्लिकेशन। ये जो डिप्लॉयमेंट होता है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट वन, दिस इज द लॉन्गेस्ट रेप्लिकेशन, मतलब ये डिप्लॉयमेंट जो होता है हमारे बैकअप के लिए फॉर एनी सर्वर, क्योंकि बहुत सारी चीज बैकएंड में करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक रिसोर्स ग्रुप प्राइमरी आरजी एएसआर बन जाएगा। चलो प्राइमरी आरजी एएसआर बन गया। अब सेकेंडरी आरजी पे हमारा ये पूरा डिप्लॉयमेंट चल रहा है। उससे पहले रेप्लिकेशन के दो काइंड होते हैं, वो समझते हैं, ठीक है। तुम जब भी रेप्लिकेशन करोगे ना, जब भी हम लोग रेप्लिकेशन या फिर कॉपी करते हैं, तो इसका दो काइंड होता है, जस्ट लिसन केयरफुली, ठीक है। द फर्स्ट वन इज crash consistent, the second one is app consistent, ठीक है। ये क्रैश कंसिस्टेंट और ऐप कंसिस्टेंट कहता क्या है, यू सपोज यू टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर डेफिनेशन, तो देखो क्रैश कंसिस्टेंट कहता है ना, क्रैश कंसिस्टेंसी इंश्योर्स दैट द डेटा इज बैक्ड अप और रेप्लिकेटेड, मतलब कॉपी होता है इन अ स्टेट दैट इज रिकवरेबल इन द इवेंट ऑफ सडन क्रैश और पावर फेलियर। देखो जब भी हमारा सिस्टम सडन क्रैश करता है ना, उसके ठीक उससे जस्ट कुछ सेकंड पहले वो हमारा बैकअप क्रिएट कर लेता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रैश कंसिस्टेंट, ठीक है। ये जो क्रैश कंसिस्टेंट का जो बैकअप क्रिएट होता है ना, वो ना थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। इनकंसिस्टेंट क्यों हो सकता है, इसका सबसे प्राइमरी रीजन ये होता है कि द प्राइमरी रीजन फॉर द इनकंसिस्टेंट डेटा हो सकता है कि जब हमारा क्रैश हुआ हो सकता है कि हमारे डेटाबेस पे या हमारे सर्वर पे कुछ रीड ऑपरेशंस हो रहे होंगे या फिर कुछ राइट ऑपरेशंस हो रहे होंगे जो कि वो पूरा नहीं हो पाया, that couldn't happen fully, इसलिए हो सकता है कि थोड़े इनकंसिस्टेंसी आ सकता है। बट क्रैश का हमें बैकअप जरूर मिल जाएगा कि जब भी हमारा क्रैश होगा उससे पहले मेरे को बैकअप मिल जाएगा। और ये ऐप कंसिस्टेंट क्या कहता है, ये ना थोड़ा ये जो एप्लीकेशन कंसिस्टेंसी
takes the data backup a step further by ensuring that the data is captured in the state that is consistent with the applications running on the system. मतलब जो भी हमारे एप्लीकेशन चल रहे थे हमारे सर्वर पे, ये उससे भी रेप्लिकेट कर देगा और एट दैट स्टेट जहां पे हमारा डेटा रीड या राइट हो रहा था। ठीक है, तो अगर समराइजेशन चाहोगे फ्रॉम द समराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्रैश कंसिस्टेंट बैकअप्स कैप्चर द डेटा एज इट इज ऑन द डिस्क एट द टाइम ऑफ बैकअप। ठीक है, while application consistent backups ensures that the data and application are in stable state at the time of the backup. ठीक है, द चॉइस ये तुम लोग का अपना चॉइस होना चाहिए, ये डिपेंड करता है। दिस ऐप कंसिस्टेंट ये थोड़ा इट कम्स विथ एंड सम हायर कॉस्ट एज वेल, इसका हायर कॉस्ट होता है बिकॉज ये हमें कंसिस्टेंट डेटा देता है ऑन आवर सर्वर्स। ठीक है, क्रैश कंसिस्टेंट भी हमें डेटा जरूर दे देगा, ये डेटा बैकअप में जरूर दे देगा, बट दैट कैन बी इनकंसिस्टेंट बिकॉज देयर माइट बी सम एप्लीकेशन रनिंग जो हमारा उस स्टेट में हो जब क्रैश हुआ हो, वो उस स्टेट में कुछ डेटा परफॉर्म हो रहे होंगे, कुछ आईओ परफॉर्म हो रहे होंगे, वो कंप्लीट नहीं हो पाया होगा। इसलिए इट डिपेंड्स ऑन द यूज केस ऑन व्हाट यू वांट टू रियली गो। ये देखो अभी भी रेप्लिकेशन यहाँ पे चल रहा है, ये जब रेप्लिकेशन हो जाएगा ना तब हमारा यहाँ पे फेल ओवर क्रिएट हो जाएगा, और फिर जब हमारा वो सर्विस कभी फेल हो गया ना तो हमें बस फेल ओवर पे क्लिक करना है तो हमारा एक मैनेज डिस्क बन जाएगा। तो वेट करते हैं इसके रेप्लिकेशन के लिए। और एल्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये जब तक यहाँ पे मेरा बनता रहेगा ना तब तक ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो आज का फाइनल टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अगर ये रेप्लिकेशन क्रिएट हो गया तो, लेकिन फिर भी एवरीवन यू हैव टाइम, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टुडे, और मतलब तुम्हारे पास अभी टाइम बहुत है। यू कैन रियली क्रिएट a replication and see that what are the advantages and what are the different ways of a replication। हमारे पास क्या क्या सेटिंग्स में अवेलेबल है, what are the properties, वो हमारा मैनेज डिस्क जो बनाता है उसके साथ हम VM कैसे बनाए, वो सब कुछ तुम लोग देखना। ठीक है, इन द मीन टाइम अगर ये हो गया विद इन द कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास देन वेल एंड गुड, बट वी विल बी मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक, and that would be the final topic or the final web service, final services of Azure that we are going to learn. After that हम लोग DevOps का part concept start करने वाले हैं from tomorrow. Finally we are going to learn about something called as Azure Traffic Manager. ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ATM। ठीक है, ये Azure ट्रैफिक मैनेजर करता क्या है? ठीक है, Azure ट्रैफिक मैनेजर ये इसको ना हम लोग ना अगर ये बोल दे कि फॉर एग्जांपल Azure ट्रैफिक मैनेजर को हम इन जनरल टर्म्स हम लोग ग्लोबल लोड बैलेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट फुली करेक्ट, बट इसे बोला जरूर जाता है ग्लोबल लोड बैलेंसर। ठीक है, ग्लोबल लोड बैलेंसर। ठीक है, ये ग्लोबल लोड बैलेंसर करता क्या है, या फिर एक ट्रैफिक मैनेजर करता क्या है? जैसे हम लोग ने कल पढ़ा कि कल या उसके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि YouTube के जो डेटा सेंटर्स है ना, हमारे पास अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास US पे सर्वर है, वी हैव सर्वर इन US। ठीक है, अगर इंडिया से कोई इसे फेच करता है, इंडिया से अगर इसे कोई फेच करता है और कोई इसे इन USC कोई अगर फेच करता है या फिर कोई इसे UK से फेच करता है, ठीक है, तो हमारे पास लेटेंसी होती है। ठीक है, लेटेंसी होती है, तो इसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला, हमने CDN का कंसेप्ट लाया। ठीक है, लेकिन CDN का भी ना कुछ डिमेरिट्स है, CDN के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो तुम लोग देख लेना। डिसएडवांटेजेस ऑफ CDN ऐसा करके लिखते हैं, चलो डिसएडवांटेज
सीडीएन मोस्टली हमारे स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीडीएन ओवर ट्रैफिक मैनेजर। कुछ तो मिल जाएगा डिटेल्ड अबाउट सीडीएन, प्रोज एंड कॉन्स। चलो कॉन्स देखते हैं, प्रोज तो पता ही है। क्विक डिलीवरी एक्सेस क्रिएट्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है ठीक है ठीक है। कॉन्स क्या है? गुड थिंग्स कम विथ एक्स्ट्रा कॉस्ट। द मोस्ट प्रोमिनेंट डाउनसाइड ऑफ सीडीएन इज कॉस्टली होता है। लोकेशन ऑफ सर्वर, इफ देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द लोकेशन ऑफ योर सर्वर एंड दैट ऑफ योर audience, the CDNs won't be much help to you. So it's really important to know your audience geography. ठीक है, ये geography हमें पता नहीं है कि audience exactly किस location से आएगा। ठीक है, support can be an issue since CDNs are mostly operated over third party infrastructure. Resolving an issue can involve too much and too flow of communication. चलो समझ में आ गया। मतलब बेसिकली ये जो मेरा डिमेरिट है ऑफ CDN, ये हम लोग ओवरकम करेंगे यूजिंग आवर ट्रैफिक मैनेजर। सीडीएन में क्या होता था, हमारे एज लोकेशंस पे, और एज लोकेशंस काफी लिमिटेड होता था। हमने अपने क्या किया, वो यूएस के सर्वर का एक एज लोकेशन जहां भी हमारा पीओपी था, हमने वहां पे साइट को कॉन्फ़िगर कर दिया भाई। बट पीओपी इज वेरी लिमिटेड। अगर मान लो कि हमारे ऐसे यूजर हैं जो हमारे वो उस लोकेशन पे अवेलेबल ही नहीं है, पीओपी उस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, तो लेटेंसी तो उसको वहां भी मिलेगा। तो इस मोमेंट पे क्या करते हैं ना, हम लोग खुद अपना एक सर्वर सेटअप करते हैं। ठीक है, ये तो यूएस सर्वर हो गया। और फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा इंडिया सर्वर, ये रहा मेरा इंडिया का सर्वर। ठीक है, अब जब इंडिया वाला क्लाइंट जब हिट करेगा तो कोई तो होना चाहिए ना, एक बैलेंसर तो होगा ही, लोड बैलेंसर होगा ही, जो हमारे इंडिया सर्वर या यूएस सर्वर को कनेक्ट करके रखेगा, जो हमें वहां पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन कोई तो होना चाहिए जो बताए कि ये ट्रैफिक, ये इंडिया का ट्रैफिक इंडिया में जाना चाहिए या फिर ऑन सम बेसिस ये कहीं तो जाना चाहिए। समझ रहे हो मेरा बात everyone? Yes, sir. Are you there? सुन रहे हो मेरा बात? Yes. काफी लेक्चर हो रहा है यार आज। कोई नहीं, चलो। देयर शुड बी समवन जो हमें बताए कि अगर मान लो इंडिया से अगर रिक्वेस्ट आ रहा है, तो हमारा अगर मान लो यहाँ लोड बैलेंसर है और हमारे पास 4-5 सर्वर है, तो बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, ठीक है, बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, ये यहाँ पे जब लोड डिस्ट्रीब्यूट हो ना, ये क्या हो गया यार, ठीक है, अंडू कैसे करते हैं? अच्छा ठीक है, छोड़ो, कहाँ पे? ठीक है, बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, ये पता तो चलना चाहिए कि ये पॉइंट नहीं दिख रहा है। हाँ यार, ठीक है, ये पता तो चलना चाहिए बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया कि ये इंडिया सर्वर पे रिडायरेक्ट करे या फिर यूएस सर्वर पे रिडायरेक्ट करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अज्योर ट्रैफिक मैनेजर, ये ट्रैफिक मैनेजर कॉन्फ़िगर करते हैं, और हम अपने लोड बैलेंसर के आईपी या फिर एप्लीकेशन गेटवे के जो हमारा डोमेन होता है ना, जो डोमेन हम लोग मैप किए रहते हैं, ठीक है, उसको हम इंटरनली ट्रांसफर कर देते हैं टू आवर ट्रैफिक मैनेजर। अब ट्रैफिक मैनेजर हमारा जो भी जिस क्राइटेरिया पे सेट है ना, वो इंटरनली समझे कि वो उसे कहाँ पे सर्व करना है, उसे इंडिया पे सर्व करना है, यूएस पे सर्व करना है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन उसे कहाँ सर्व करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक मैं बताता हूँ, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, this one everyone is clear, right? You can see the lectures as well. तो इसे मैं हटा के क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब एकदम ग्रास रूट लेवल बात करते हैं। ठीक है, कहाँ गया यार ये? यहाँ तुम्हारा डीएनएस है, मतलब ये तुम्हारा अज्योर डीएनएस, ठीक है। और मान लो तुम्हारे डीएनएस का नाम है, तुम्हारे डोमेन नेम का नाम है www.abc.com। ठीक है, किसी ने abc.com हिट किया, तो हम लोग क्या करते हैं, इस abc.com को
इस abc.com को एक सी नेम प्रोवाइड करते हैं। वो सी नेम क्या होता है उससे पहले हम समझते हैं। ये जो डीएनएस है ना, ये डीएनएस अब जो होगा इंटरनली एक ट्रैफिक मैनेजर बनेगा। यहाँ पे एक ट्रैफिक मैनेजर, ठीक है। दिस वुड बी योर ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल, ठीक है। अब ये जो डीएनएस का जो मेरा जो भी हिट आएगा ना, वो ट्रैफिक मैनेजर के पास जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रैफिक मैनेजर क्या करेगा, अब इस ट्रैफिक मैनेजर के पास ना हमारे पास हो सकता है एप्लीकेशन गेटवे कॉन्फ़िगर्ड हो, या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली हम लोग सर्वर से कॉन्फ़िगर कर देते हैं। बट इन जनरल इंडस्ट्री में, अरे यार क्लिक ऑन दिस वन। इन जनरल इंडस्ट्री में हम हो सकता है कि एप्लीकेशन गेटवे बना हो 2 डिफरेंट रीजन पे, और उस पे हमारे सर्वर्स होंगे, ठीक है। अब ये ट्रैफिक मैनेजर समझे बेस्ड ऑन सम कंडीशन, अब ये ट्रैफिक मैनेजर समझे कि इसको यहां से यहां लेके जाना है या यहां से यहां लेके जाना है, ठीक है। ये ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल बनने के बाद हमें हमें इसका एक डोमेन मिलेगा, ठीक है। उस डोमेन का नाम होगा समथिंग, मतलब XYZ बोल सकते हैं अभी, .azure.net.com ऐसे करके कुछ हमारा एक डीएनएस कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। अब हम इस डोमेन नेम को एक सी नेम दे देंगे xyz.azure.net। ये पहले क्या करेगा, इस abc.com पर हिट जाएगा, फिर ये इंटरनली इस पे हिट जाएगा xyz.azure.net.com पे, फिर ये हमारा लोड बैलेंस करेगा, ठीक है। अब इसे भेजना है, कहाँ भेजना है, इसे यूएस पे भेजना है, इंडिया पे भेजना है, ये डिपेंड करता है ऑन व्हाट आवर प्रोफाइल इज सेट अपॉन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली a very raw setup of particular ट्रैफिक मैनेजर, ठीक है। ये हम लोग मान लें यहाँ पे हम लोग यूजर हैं, ठीक है, या यूजर को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट यहाँ बैठा हुआ है, क्लाइंट यहाँ ने इसने रिक्वेस्ट भेजा डीएनएस को, डीएनएस ने किसे फॉरवर्ड किया, ट्रैफिक मैनेजर को, और ट्रैफिक मैनेजर ने फाइनली फॉरवर्ड कर दिया एप्लीकेशन गेटवे को, या फिर डायरेक्टली वर्चुअल मशीन को भी हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन ऑन रिक्वायरमेंट। अगर एप्लीकेशन गेटवे बना हुआ है तो वेल एंड गुड, और एल्स वी कैन डायरेक्टली प्रोवाइड द आईपीज ऑफ द वर्चुअल मशीन, और ये डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द कंडीशन कि ये कैसे सेटअप है, ठीक है। तो इसे करने के लिए वी नीड 2 वर्चुअल मशीन्स इन 2 डिफरेंट लोकेशंस। पहले वो कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। ये देखो अभी भी स्टिल रनिंग गाइज, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने होम पे, हमारे पास एक प्राइमरी वीएम बना हुआ है ना, राइट? नहीं, प्राइमरी वीएम नहीं, हमारे पास कितने वर्चुअल मशीन है? हमारे पास एक प्राइमरी VM1 है, ये कहाँ पे है? ईस्ट यूएस पे है, इसका पब्लिक आईपी ये है, ठीक है। अरे ये क्या हुआ यार, चलो ठीक है। ट्रैफिक मैनेजर कॉन्फ़िगर करने के लिए वी हैव टू गिव अ डीएनएस नेम टू आवर वर्चुअल मशीन्स एज वेल। ये याद रखना सब लोग, वी हैव टू गिव अ डीएनएस नेम टू आवर ट्रैफिक टू आवर वर्चुअल मशीन टू कॉन्फ़िगर इट इनसाइड अ ट्रैफिक मैनेजर। ये हम देंगे, उससे पहले हम एक काम करते हैं ना, एक और वर्चुअल मशीन प्राइमरी VM2 बना लेते हैं, और उसे हम बनाएंगे सेंट्रल इंडिया पे, देखते हैं क्या होता है। प्राइमरी RG ये हम बनाएंगे सेंट्रल इंडिया, बना सकते हैं क्या? प्राइमरी VM2, ठीक है, पासवर्ड ले लेते हैं, सिलिकन,
ठीक है, सब कुछ अलाउ कर देते हैं। नेटवर्क देख लेते हैं। ये कौन से वीनेट पे चला गया? अच्छा हाँ ठीक है, हमें ये नया वीनेट बनेगा क्योंकि वो जो इनिशियल वीनेट था वो तो ईस्ट यूएस पे था। ठीक है ठीक है ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। मैनेजमेंट, नेक्स्ट मॉनिटरिंग, एडवांस्ड, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। चलो क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस पे तब तक कनेक्ट करते हैं और वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके। टर्मिनल, दिख रहा है सबको? ये प्राइमरी VM1 है। क्या था पासवर्ड? गो टू CD, apt install Apache 2। CD के अंदर, var के अंदर, ठीक है, echo, ये मेरा ईस्ट यूएस पे है ना, हेलो फ्रॉम यूएस, ऐसे कर देते हैं index.html पे। चलो इन द सेम वे जो मेरा सेकंड VM डिप्लॉय हुआ है, प्राइमरी VM2, इसे भी कनेक्ट करते हैं। sudo su cd apt install Apache 2, ठीक है। अब चलते हैं CD के अंदर, var के अंदर, www के अंदर, html, ls किया, index.html है, इसको हम लोग बोलेंगे echo हेलो फ्रॉम, वहां पे क्या लिखा था हमने, हेलो फ्रॉम इंडिया, index.html। ठीक है, चलो अब दोनों सर्वर मेरा रेडी हो गया है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों VM के पास एक DNS होना चाहिए, तो दोनों सर्वर के ओवरव्यू पे जाते हैं, दोनों वर्चुअल मशीन के ओवरव्यू पे जाते हैं। ये कॉन्फ़िगर नहीं है, इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी VM1। चलो प्राइमरी VM1 और इसे सेव कर देते हैं।
ठीक है। अब प्राइमरी VM2 को भी हम DNS कॉन्फ़िगर कर देते हैं। प्राइमरी VM2 देखो ये जो बन रहा है ना DNS प्राइमरी VM2.centralindia.cloudapp.azure.com, इसे सेव कर देते हैं। चलो अब ओवरव्यू पे चलेंगे ना, तो इसके पास वर्चुअल मशीन्स प्राइमरी VM1 के ओवरव्यू पे चलेंगे तो हमें यहाँ पे DNS मिला हुआ है, ठीक है। अब इसे अगर हम कॉपी करें, ठीक है, ये US सर्वर पे लेके चला गया प्राइमरी VM1.east US। और इन द सेम वे अगर हम प्राइमरी VM2 के ओवरव्यू जाएं और इसके DNS नेम को कॉपी करें तो हमें ये देना चाहिए, चलो हेलो फ्रॉम इंडिया, हेलो फ्रॉम US तो हो रहा है, ठीक है। अब चलो हम लोग ट्रैफिक मैनेजर को सेट करते हैं। ट्रैफिक मैनेजर सेट करने के लिए क्रिएट अ ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल, ठीक है। ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल सेट करने के लिए हम लोग चलते हैं ट्रैफिक मैनेजर पे। ट्रैफिक मैनेजर हमें मिलेगा कहाँ, वो हम लोग सर्च करते हैं, सर्च फॉर ट्रैफिक मैनेजर। दिख रहा है ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल्स, ये अगेन लोड बैलेंसिंग के अंदर ही है। कल हम लोग एप्लीकेशन गेटवे कर रहे थे, उसके अंदर ही है हमारा ट्रैफिक मैनेजर। इसमें हम लोग प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये ट्रैफिक मैनेजर हम लोग क्रिएट करने के लिए नेम लिखेंगे माई ट्रैफिक। देखो ये जो है ना माई ट्रैफिक डॉट ट्रैफिक मैनेजर डॉट नेट, ये हमें एक एंड पॉइंट मिलेगा। माई ट्रैफिक इसका नाम रख देते हैं, हाँ माई ट्रैफिक ही रहने देते हैं, ठीक है। राउटिंग मेथड, अच्छा ये माई ट्रैफिक ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, माई ट्रैफिक फॉर सिलिकन। चलो ये राउटिंग मेथड क्या होता है ना, इसके बारे में जानते हैं। परफॉर्मेंस है, वेटेड है, प्रायोरिटी है, ज्योग्राफिक है, मल्टी वैल्यू है और सबनेट है, ठीक है। ये सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। प्रायोरिटी, ठीक है। अब मैं तुमसे तब से बोला जा रहा हूँ कि ये किसी क्राइटेरिया बेसिस पे ये यहाँ से राउट करेगा, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को क्या बोला जाता है वो देखते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी, तो हम क्या करेंगे, हम अपने वर्चुअल मशीन्स का प्रायोरिटी सेट कर देंगे। ये प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है, 3 है। तो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ये हमेशा उस वर्चुअल मशीन पे लोड को भेजेगा, ठीक है। अगर प्रायोरिटी अगर किसी वर्चुअल मशीन यूएस के वर्चुअल मशीन का हमारा प्रायोरिटी 1 सेट है तो ये हमेशा हमारा जो लोड है ना वो वर्चुअल मशीन यूएस को ही भेजेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वी सेट द priority based routing allows us to define a primary endpoint and one or more secondary endpoints. Traffic it is directed primarily to the highest priority, ठीक है, मतलब lowest number endpoint, and only if that endpoint becomes unavailable, अगर ये किसी समय अगर मान लो हमारा जो यूएस का सर्वर है इसका प्रायोरिटी 1 सेट है, अगर ये अनअवेलेबल हो गया तब हमारा जो सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा ना वो वहां पे रिडायरेक्ट होगा। क्लियर एवरीवन, वेरी बेसिक, कि जिसका प्रायोरिटी सेट है वो वहां पे ज्यादा रिडायरेक्ट होगा। ये सब लोग हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कमिंग ऑन टू द सेकंड वन इज वेटेड, ठीक है। वेटेड में क्या होता है कि विथ वेटेड रूटिंग और राउटिंग वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस एंड पॉइंट्स बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड वेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो वेट है ना, इसका वेट मान लो हम लोग बोलते हैं 75% है और इसका वेट होगा मान लो 25%,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 75% ऑफ द ट्रैफिक वुड बी मैनेज बाय यूएस सर्वर एंड 25% ऑफ द ट्रैफिक वुड बी मैनेज बाय द अदर सर्वर. यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग n नंबर ऑफ सर्वर्स. फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लो तुम्हारा एक पहले ऑन प्रीमाइसेस का सेटअप था, ये ऑन प्रीमाइसेस सेटअप था. यू हैव रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम द ऑन प्रीमाइसेस टू द अज्योर. ठीक है, तुमने अज्योर पे सारा अपना सेटअप किया, तो तुम डायरेक्टली तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारा सारा ऑन प्रीमाइसेस का लोड अज्योर पे आ जाए, क्योंकि हो सकता है तुम्हें टेस्टिंग भी करना पड़े कि लोड सह पा रहा है कि नहीं सह पा रहा है. तो हम लोग उस टाइम पे बोलते हैं ऑन प्रीमाइसेस को 75% रख देते हैं और अज्योर पे 25% रख देते हैं. After you know that my Azure is now stable, you can gradually shift from on premises, मतलब on premises को तुम weightage को घटाते जाओगे और Azure के premises को बढ़ाते जाओगे. So this is the meaning of what do you say, weighted. Now third one is performance. Third one is performance. ठीक है, as the name defined, performance based routing directs user to the endpoint that has lowest network latency. ठीक है, अब जिस नेटवर्क का, अब मान लो मेरे इंडिया नेटवर्क से अगर कोई एक्सेस करना चाह रहा है और हमारे परफॉर्मेंस बेस्ड राउटिंग लगा के रखा हुआ है, इसका मतलब जिस सर्वर से उसको सबसे कम लेटेंसी मिले वो उसे वहां रिडायरेक्ट करेगा. ठीक है, Azure ट्रैफिक मैनेजर यूजेस रियल टाइम लेटेंसी. वो रियल टाइम लेटेंसी यूज करता है अपने पास टू मेजर कि बेस्ट परफॉर्मिंग एंड पॉइंट क्या है यूजर्स रिक्वेस्ट से. ठीक है, ये सब कुछ Azure ट्रैफिक मैनेजर अपने एंड पे रखता है. ठीक है, फोर्थ वन ये होता है जियोग्राफिक. ठीक है, जियोग्राफिक राउटिंग में क्या होता है, geographic based routing enables you to redirect traffic based on the geographic location of the user. You can create geographic regions and map endpoints to a specific region. इसका मतलब तुम अलग अलग रीजन पे एक अपना सर्वर बना सकते हो और वहां से उसको मैप कर सकते हो कि अगर इस ज्योग्राफिक रीजन से मेरा अगर कुछ भी आया, फॉर एग्जांपल आइसलैंड से आया या फिर व्हाटएवर वो सदर्न पोल या नॉर्दर्न पोल पे तुम कर दो, अगर वहां पे तुम्हारे डेटा सेंटर्स नहीं है, बट वहां से जो नियरेस्ट है, जो ज्योग्राफिकली वो सबसे जो वहां से करीब है, या फिर तुम्हें उसे बाउंड कर देना है कि इसे हमेशा इसी ज्योग्राफिक लोकेशन से इसे रिक्वेस्ट चाहिए, देन यू कैन टेल इट एज ज्योग्राफिक. फिफ्थ वन एक होता है मल्टी वैल्यू. बस इतना ही जान लो, ये 5 जनरली यूज होते हैं. मोस्टली प्रायोरिटी, वेटेड एंड परफॉर्मेंस ही यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, मल्टी वैल्यू राउटिंग रिटर्न्स मल्टीपल हेल्दी एंड पॉइंट्स इन द डीएनएस रिस्पॉन्स. ठीक है, डीएनएस के रिस्पॉन्स में मल्टीपल जो हेल्दी होंगे ना वो भेजता है, रादर देन अ सिंगल एंड पॉइंट. ये हमें मल्टीपल वैल्यू रिस्पॉन्स करता है कि ये भी सही है, ये भी सही है. अब ये अनोनिमसली या वॉलंटरली कोई भी एक क्लाइंट विल रैंडमली सेलेक्ट एन एंड पॉइंट फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड अलाउइंग फॉर बेसिक लोड बैलेंसिंग अक्रॉस मल्टीपल एंड पॉइंट्स. ठीक है, तो ये सब होता है इसका बेसिक डिफरेंस. तो हम लोग अभी चलते हैं अपने, कहाँ गए हम लोग, कहाँ बना रहे थे. ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं इसे प्रायोरिटी. ठीक है, रिसोर्स ग्रुप कौन सा रहेगा, हम प्राइमरी आरजी पे सब कुछ करते हैं. चलो नेक्स्ट. अच्छा, ये माई ट्रैफिक फॉर सिलिकन चेक कर रहा है कि नहीं है. वेट फॉर सम टाइम. माई सिलिकन बैच. चलो ये अवेलेबल है, माई सिलिकन बैच डॉट ट्रैफिक मैनेजर डॉट नेट. मैं जैसे बोला ना, ट्रैफिक मैनेजर को मिलेगा, क्रिएट करो. चलो डिप्लॉय हो रहा है, वेट करते हैं. इधर आके देखते हैं हमारा सर्विस वॉल्ट डिक्लेयर हुआ कि नहीं हुआ अभी तक. कहीं दिख रहेगा सर्विस वॉल्ट? हाँ देखो, ये माई वॉल्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे. ठीक है, अब ये माई वॉल्ट क्रिएट हुआ है ना, अब इसमें तुम देखोगे साइट रिकवरी पे जाओगे. नहीं, ओवरव्यू, बैकअप, साइट रिकवरी. ये देखो कैश स्टोरेज अकाउंट बनाता है, जो मैं बता रहा था.
इधर देखते हैं। देखो माई सिलिकॉन फॉर बैच, ये ट्रैफिक मैनेजर बन गया, उसको देखते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आओ, और अब यहाँ पे हमें फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, हमें इसे एंड पॉइंट्स देना है। ठीक है, गो टू एंड पॉइंट्स, गो टू एंड पॉइंट्स। अगर इसके अभी ओवरव्यू पे आते हैं तो हमें एक आईपी मिला होगा, एक कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, डीएनएस नेम ये रहा मेरा डीएनएस नेम, कॉपी करते हैं और इसे हम हिट करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इसे एंड पॉइंट दिया ही नहीं है। ठीक है, हेलो फ्रॉम इंडिया, हेलो फ्रॉम, ये हटा देते हैं। ठीक है, नाउ आई गो बैक टू माय एंड पॉइंट, चलते हैं एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, एक एंड पॉइंट ऐड करते हैं। ठीक है, टाइप अज्योर एंड पॉइंट, नेम रहेगा माय फर्स्ट एंड पॉइंट, माय फर्स्ट एंड पॉइंट। टारगेट रिसोर्स क्या रहने वाला है, एक क्लाउड सर्विस रहेगा, ऐप सर्विस रहेगा, ऐप सर्विस स्लॉट रहेगा, या पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा। मैं बोलता हूँ पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा। ठीक है, कौन सा पब्लिक आईपी रहेगा, मैं बोलता हूँ VM1 का आईपी रहेगा। इसका प्रायोरिटी क्या रहेगा, प्रायोरिटी 1 रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऐड कर देते हैं। चलो, अब इसके पास एक एंड पॉइंट आ गया है, तो अब हम लोग अपने ट्रैफिक मैनेजर के, देखो हेलो फ्रॉम यूएस आ रहा है। ठीक है, अभी तक एक ही आईपी सेट है, एक और आईपी सेट करते हैं वहां पे। अगेन यू गो बैक टू दिस, क्लिक ऑन ऐड। अब इसे बोलो कि दिस इज माय सेकंड एंड पॉइंट। ठीक है, टारगेट रिसोर्स अगेन पब्लिक आईपी रहने वाला है और इसे हम दे देंगे VM2 का आईपी। ठीक है, इसका प्रायोरिटी 2 है, क्लिक ऑन ऐड। चलो, अब हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये हमें हमेशा यूएस से ही रिस्पॉन्स देगा। एनीवन विद द रीजन, ये हमेशा क्यों यूएस से ही रिस्पॉन्स देगा? प्रायोरिटी 1 है। ठीक है, प्रायोरिटी 1 है। चलो, अब हम टेस्टिंग करने के लिए हम प्रायोरिटी चेंज करके देखते हैं कि हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, इस पे जाते हैं, माय फर्स्ट एंड पॉइंट पे, और इसका प्रायोरिटी 3 कर देते हैं। अज्योर वेबसाइट, मतलब अज्योर पोर्टल स्लो हो गया क्या, और एल्स माय नेटवर्क इज स्लो? नहीं है, फास्ट तो है। ठीक है, इसका प्रायोरिटी हम 3 सेट कर देते हैं। उसका 2 था, इसका हम 3 सेट कर देते हैं। क्लिक ऑन सेव। अच्छा, हाँ 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 हाँ, सब लोग इसको हिट करो यार, तुम्हारे एंड में क्या आ रहा है ये भी तो मैं जानूं। ठीक है, एवरीवन हिट दिस डोमेन नेम, और मेरे को बताओ सब लोग क्या आ रहा है। देखो सब लोग यहाँ पे इंडिया आने इंडिया, लगा। यस। चलो, इंडिया आने लगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड समझ में आ गया कि प्रायोरिटी बेस्ड क्या आ रहा है। ठीक है, चलो, ये इंडिया पे आने लगा क्योंकि हमने प्रायोरिटी इंडिया वाले सर्वर का 1 मतलब 2 कर दिया था और यूएस वाले सर्वर का 3 कर दिया था। अब इसी तरह से लेट्स गो एंड चेंज आवर प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी जो हमारा होगा ना। हम लोग चलते हैं यहाँ पे, बैक चलते हैं। ओके, सबका इंडिया आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज में चलते हैं। प्रॉपर्टीज या ओवरव्यू, कहाँ थे यार, देख लेते हैं। एसेंशियल्स देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्रायोरिटी है। ठीक है, अब प्रायोरिटी की जगह हम लोग करते हैं अब
हमने माई प्रोफाइल के ओवरव्यू को हमने चेंज किया था, राइट। तो हमें इसे यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन भी देना चाहिए था। ये चेंज करने का ऑप्शन हमें कहाँ देगा, कॉन्फ़िगरेशन में देगा क्या? चलो अब कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। हमारा अभी कॉन्फ़िगरेशन था प्रायोरिटी, ठीक है। तो अब हम प्रायोरिटी से इसे चेंज करते हैं। अब एक काम करते हैं ना, परफॉर्मेंस कर देते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस करने के बाद हम इसे सेव करते हैं, ठीक है। जैसे ही परफॉर्मेंस करेंगे ना, तो वो सारे प्रायोरिटीज वहां से हट जाएंगे। और अब इसे हिट करोगे तो अब हमेशा तुम्हें इंडिया सर्वर से ही रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि इंडिया वाला जो सर्वर होगा ना वो इजिली एक्सेसिबल है फ्रॉम आवर। अगर तुम लोग वीपीएन सेटअप करते हो, सपोज यू चूज अ वीपीएन ऑफ यूएस, फिर देखना वो यूएस का सर्वर देगा। एनीवन हु कैन डू इट वेरी क्विकली, कि अपने मोबाइल पे वीपीएन को यूएस सर्वर पे लेके जाओ एंड देन ट्राई टू हिट दिस पर्टिकुलर आईपी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं। ये चलो सेव हो गया, ठीक है। अब हम अपने एंड पॉइंट्स पे जाएंगे ना, तो हमारा प्रायोरिटीज हट गया होगा। देखते हैं हटाएगी नहीं हटाए। देखो नाउ इट आई डोंट हैव एनी प्रायोरिटीज ओवर हियर। बस ये लोकेशन सेंट्रल इंडिया है और ये ईस्ट यूएस है, ठीक है। अब हम इसे कभी भी हिट करें, कहीं से भी हिट करें अक्रॉस इंडिया, ये हमेशा इंडिया सर्वर ही देगा मेरे को, क्योंकि ये इसका बेस्ट परफॉर्मेंस है फ्रॉम आवर लोकेशन। Anyone who can do a real quick setup of VPN on their from their mobile phone and can just let me know कि वहाँ पे US आ रहा है कि नहीं आ रहा है लोकेशन चेंज करने पे, जस्ट अ टेस्टिंग पर्पस। कोई भी यार, तुम लोग VPN तो सभी यूज करते होगे, means mostly we use to VPN for connecting it to the US servers for our client, but in general it's there. Okay, ठीक है। अब इसी तरह हमारा वेटेड भी होता है, इसी तरह हमारा यस सर। आ रहा है। किसने टेस्ट किया क्या? एकदम। यूएस आ रहा है वो? यस। ठीक है, चलो अब समझ गए ये ट्रैफिक मैनेजर का यूज कैसे करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं। एवरीवन अपना लैब कर सकते हो इसके बेसिस पे। यस सर। Yes. चलो ठीक है। रिकवरी सर्विसेज पे क्लिक ऑन रिफ्रेश। देखो अब ये धीरे धीरे बनने लगा। रेप्लिकेशन हेल्थ हेल्दी 1 आ रहा है कि हमारा एक तो वहां पे रेप्लिकेट हो चुका है, ठीक है। अगर हम बैकअप पे क्लिक करें, वर्चुअल मशीन है, बैकअप पे क्लिक करें। ओहो, अब हमें बैकअप भी बनाना पड़ेगा। नहीं, बैकअप नहीं। गो टू साइट रिकवरी, इनेबल रेप्लिकेशन। हमने तो इनेबल रेप्लिकेशन किया ना, सोर्स तो सब कुछ कर लिया था हमने। न्यू फाइल इम्प्रूव्ड, इनेबल साइट रिकवरी। ये तो हमने सब कुछ कर ही दिया है। साइट रिकवरी, साइट रिकवरी, बैकअप है। अरे यार, होम पे गया हमने, ठीक है। माई वॉल्ट यहाँ पे बन गया। अब इस वॉल्ट से हम लोग चलो ओवरव्यू पे चलते हैं, कहीं पे तो कुछ तो मिलेगा। एसेंशियल्स, ठीक है। ठीक है, हमने एक वर्चुअल मशीन जो है, ये देखो हमारा रेप्लिकेटेड आइटम्स में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे हमारा प्राइमरी वीएम अभी हेल्दी स्टेटस में है। हमने ये 92% इसे सिंक्रोनाइज कर दिया है, ठीक है। हाँ ये रहा।
ये प्राइमरी वीएम पे आओगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो तुमको फेल ओवर का ऑप्शन दिख रहा है, टेस्ट फेल ओवर दिख रहा है और क्लीन टेस्ट फेल ओवर होता है। ठीक है, इससे अब हो क्या गया कि अब जब भी तुम लोग ये प्राइमरी वीएम के देखो, अब तुम माई वॉल्ट पे आ गए, माई वॉल्ट में रेप्लिकेटेड आइटम्स में गए तो यहाँ पे देखा कि प्राइमरी वीएम को हमने रेप्लिकेट करके रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, अब जब ये कुछ देर के बाद हमारा टेस्ट फेल ओवर एक्टिव होगा, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट फेल ओवर क्लिक करते हैं। टेस्ट फेल ओवर होने के बाद हम लोग क्लीन अप टेस्ट फेल ओवर को क्लिक करेंगे। फिर ये जब क्लीन अप हो जाएगा, देन फाइनली वी क्लिक ऑन दिस फेल ओवर कि भाई हमारा फेल ओवर हो चुका है। अब ये फेल ओवर क्लिक होने के बाद हमारा एक फाइनली एक मैनेज डिस्क बनता है। ठीक है, तो सबसे अगर तुम लोग स्टेप जानना चाहोगे तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट फेल ओवर पे जाएंगे, टेस्ट फेल ओवर। ठीक है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा देन वी क्लीन अप। ठीक है, और ये क्लीन अप होने के बाद फाइनली हमारा फेल ओवर एक्टिव हो जाएगा। ये बटन एक्टिव ही तब होता है जब हमारा ये सारा प्रीवियस परफॉर्मेंस ये काम क्लियर हो जाता है। अभी देखो ये सब कुछ भी एक्टिव नहीं है एट द मोमेंट। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन है ना वो 100% हो जाएगा, उसके बाद ये बोलेगा कि आप रेप्लिकेट कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट टेस्ट फेल ओवर, देन क्लीन अप टेस्ट फेल ओवर, देन फाइनली फेल ओवर। ठीक है, दिस बटन्स आर करेंटली इनएक्टिव। ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर व्यू नॉट एप्लीकेबल, दिस व्यू इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मशीन्स दैट आर रेप्लिकेटिंग टू अज्योर। ठीक है, अगर ये मैप मिल जाता तो पता चल जाता है कि तुम्हारा किस लोकेशन पे तुम्हारा वीएम है और तुम्हारा रेप्लिकेशन कहाँ होने वाला है। चलो, so with that I think so we can wrap off today's class. Let me stop recording it.